Hello everybody, myself Asit Patnaik. Again I am coming back to my channel Asit ECOMANIA. Today I bring the topic government budget and the economy. I will discuss the part 1, very useful for CBSE standard 12 students. So today I will discuss meaning of budget, objectives of budget, and different components of budget like revenue budget and capital budget, and budget receipts. It is revenue receipts and capital receipts. So my friends, please watch my video till the end. Please comment me, like me, and subscribe my channel Asit ECOMANIA. So definitely I will try that my video will be interesting one, and I will give some useful information to the students. So I do not want to waste more time. So now I will start. First I will discuss meaning of budget. We know that every year the government declare the budget on the last working day of month of February. In budget, basically budget is a statement dealing with estimated government receipts and government expenditure during the period of financial year or fiscal year. जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 तक. सो बिफोर फाइनेंशियल ईयर और फिजिकल ईयर गवर्नमेंट डिक्लेयर द बजट. So basically in the budget statement government declare the estimated government receipts. गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करता है कि जो डिफरेंट सोर्सेस से उसको जो रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त होगा कि कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त होगा वो डिक्लेयर करता है. वो एस्टिमेटेड होता है, वो एक्चुअल नहीं होता है. वैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको भी डिक्लेयर करता है कि किस किस एरिया में कितना एक्सपेंडिचर करेगा. Basically in budget government declare that on which areas government is going to make expenditure on different activities. Also government declare it in government budget. So इसमें हमको पता होगा कि कौन सा सोर्सेस से गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा और किस किस एरिया में गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा. जो एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट का प्लानिंग होता है. जैसे बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर, in budget government declare that it means how much money government is going to spend on rural development, infrastructure, education, health, defense, drinking water facilities, power. So like this government declare it. It means on construction of dams or construction of transport. It means government declare elaborately on which areas government is going to spend. Similarly, from which sources actually government collect the revenue, also it means government declare it. So government declare the estimated receipts and expenditure. So basically it is a statement dealing with estimated government receipts and government expenditure during the period of financial year. So किस उद्देश्य से actually government जो budget को पेश करता है, for what purpose, what is the main objective of the government budget, just I am going to discuss. So my friends, please comment me, subscribe me and like me. So due to your comment, definitely it means it means I bring some changes in my video. So I detect also lacuna, I detect also bottlenecks, so that again I bring some new things. So please comment me and watch the video till the end. So now I will discuss objectives of government budget. So first objective is reducing inequalities in income and wealth. We know that India is a secular country, and basically in our secular country equitable distribution of income and wealth, it is the main sign of social justice. तो इसमें जो असमानता को कम करने के लिए, जो आय एवं वेल्थ में जो असमानता होता है उसको कम करने के लिए बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव बजट का वही होता है. कैसे जो इनइक्वालिटी है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड. सो सेम थिंग आई हैव रिटन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस, which is the principal objective of welfare state like India.
सो जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपुल है उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा वो कैसे समान होगा. How to bring equality in distribution of income, it is the main objective of the budgetary policy. So in this case government uses fiscal instruments like taxation and subsidies. The same thing I have written, the government uses fiscal instruments of taxation and subsidies with a view to promoting the distribution of income and wealth in the economy. So गवर्नमेंट उसका जो मेन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके वो जो असमानता है, आय में जो असमानता है और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में जो असमानता है उसको कम करने के लिए सरकार प्रयास करता है. गवर्नमेंट ईच एंड एवरी टाइम गवर्नमेंट मेक एफर्ट टू रिड्यूस inequality of income and wealth, okay, through the budgetary policy. So you see, basically government levies progressive taxation on rich people. Progressive taxation means actually in Indian tax system 3 types of taxation are there: progressive taxation, proportional taxation and regressive taxation. ओके, सो इसको मैं डिस्कस आगे में करूंगा. मेरा जो आगे में वीडियो जो आएगा गवर्नमेंट बजट के ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा. बट हियर गवर्नमेंट लेवीज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन रिच पीपल टू रिड्यूस देयर डिस्पोजेबल इनकम. तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है ना? इट मीन्स द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर. जब टैक्स पेयर का इनकम बढ़ता जाएगा तब रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा. तो ये जो 2020-21 का जो टैक्स स्लैब के बारे में बता रहा हूँ, जो न्यू टैक्स स्लैब अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है 2020-21 के लिए, फर्स्ट 2.5 लाख देयर इज नो टैक्स, नेक्स्ट 2.5 लाख इट इज रेट ऑफ टैक्स इज 5%, देन सिमिलरली 5 लाख टू 7.5 लाख टैक्स रेट इज 10%, देन 7.5 लाख टू 10 लाख टैक्स रेट इज 15%. Similarly, 10 lakh to 12.5 lakh tax rate is 20%. From this we detect that when income increases, then rate of tax increases. It is progressive taxation, and this system actually adopted in our country to reduce inequality of income and wealth. So government levies or government impose progressive taxation on rich people so that their disposable income reduces. और एक बार मैं बता रहा हूँ disposable income. From our personal income, when income tax deducted, from our personal income, when tax is deducted, then we get disposable income. Then disposable income split up into consumption and saving. Okay, हमारा जो पर्सनल इनकम से हम इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसको माइनस करेंगे. वो जो बचेगा उसका कुछ पार्ट हम कंजप्शन करेंगे और कुछ पार्ट हम सेव करेंगे. So when government levies progressive taxation on rich people, then their disposable income basically decreases. ओके, सो सेम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मीनिंग में यहां पर लिख दिया. इट मीन्स रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल. जब लोगों की आय में वृद्धि होगा तब टैक्स रेट में वृद्धि होगा. अभी मैं टैक्स स्लैब के बारे में आपको बताया. तो सेम टाइम यहां पर क्या हुआ, जब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन गवर्नमेंट इंपोज किया रिच पीपुल के ऊपर, उनका डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया. डिस्पोजेबल इनकम मीन्स उनका जो इनकम बचा कंजप्शन सेविंग के लिए वो कम हो गया. तो एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट उसका जो एक्सपेंडिचर को ज़्यादा करता है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनरेगा, पॉवर्टी अलेविएशन प्रोग्राम्स, फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, तो इसके ऊपर ज़्यादा खर्च करता है टू एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. एक साइड में इन वन साइड गवर्नमेंट इम्पोज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन रिच पीपल टू रिड्यूस देयर डिस्पोजेबल इनकम, and in other side government increase expenditure on public welfare programs. So public welfare programs actually basically providing collective benefit to the people getting collective benefits due to public welfare programs. So government hike the expenditure on public welfare programs so that money supply basically poor people, it means getting more money. So government increase expenditure in public distribution system, मनरेगा, poverty alleviation programs, expenditure make on free education and health services. So this expenditure increases only to enhance the standard of living of the weaker sections of the society. तो एक साइड में जो धनी लोग हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंपोज करता है. जैसे उनका इनकम बढ़ता जाएगा, टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, तो उनका डिस्पोजेबल इनकम कम होगा. अदर साइड में गवर्नमेंट क्या करता है ना,
जो पब्लिक वेलफेयर पब्लिक इट मीन्स एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है. ओके, गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स. तो इस एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या है ना, गरीब लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो उनका इनकम बढ़ता जाएगा और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वृद्धि होगा. ओके, टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, to enhance the standard of living of the miserable section of the society, government hike expenditure on public welfare programs. Basically, already I have written, government hike the expenditure in Monrega, PDS, more poverty alleviation programs also government bring, and free education and health services. So ऐसे जब गवर्नमेंट खर्च करेगा तब जो गरीब लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि होगा. एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर पीपल, सो देयर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस. एक साइड में रिच लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, अदर साइड में जो गरीब लोग हैं उनका डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि होगा. तो इस तरीके से सो गवर्नमेंट रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द रिच पीपल एंड इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पुअर. ओके, टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी. ओके, तो एक साइड में गरीब लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, अदर साइड में जो पुअर पीपल है, जो मिजरेबल पीपल है, जो पाउपर सेक्शन है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वृद्धि होगा, उनका डिस्पोजेबल इनकम वृद्धि होगा. तो ऐसे सरकार समानता लाएगा. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट वन. सेकेंड ऑब्जेक्टिव, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन. In case of reallocation of resources, basically we know that in private sector main objective is profit, secondary objective is welfare, but in case of government main objective is welfare and secondary objective is profit. But basically we have detected that in private enterprises their main objective is profit. Each and every time they try to get more profit, only for profit purposes they invest funds on production activities. But in case of government, only government producing goods and services and providing to the people at reasonable prices, and always government think about the welfare of the people. Okay, so that collectively people can fulfill their minimum needs. तो यहाँ पर वही चीज में लिखा, द गवर्नमेंट सिक्स टू रीअलोकेट रिसोर्सेस विद अ व्यू टू बैलेंस द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर. जो गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा फोकस करता है, जो रिसोर्सेज को आवंटन कर रहा है उसमें उसका बैलेंस होना चाहिए. वो ही सोचता है कि एक साइड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा और अदर साइड में सोशल वेलफेयर भी होगा. तो बेसिकली इन इकोनॉमिक्स वेलफेयर मीन्स टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो ड्यू टू वेलफेयर पीपल गेटिंग मोर बेनिफिट्स. Okay, so same thing I have written. Unlike private enterprises, government targets social welfare along with profit motive. I told you mainly the main motive of the private enterprises is profit, but in case of government, both government think about the social welfare and also other side also think about the profit motive. So in case of reallocation of resources, government impose or levies more taxes on injurious goods, on intoxicant goods, on spurious goods. Those goods adversely affect the health of the people. On these goods, knowingly, government impose more rate of tax. The same thing I have written. The production of goods which are injurious to health, like wine, cigarette, opium, etc., is discouraged through heavy taxation. जानबूझकर गवर्नमेंट इसी गुड्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाता है जो गुड्स हमारे लिए इंजूरियस है, जो गुड्स हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. तो इसके ऊपर जानबूझकर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगता है. जब ज़्यादा टैक्स लगाएगा तब क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा. जब प्राइस बढ़ेगा तब लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे. अदर साइड में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स ज़्यादा टैक्स देंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी प्रोडक्शन कम कर देंगे. तो बेसिकली वन साइड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ इंजूरियस गुड्स इज डिस्करेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू हेवी टैक्सेशन. But on other side, those goods are socially beneficial. Those goods are favorable for the society. On these goods, government providing subsidies. जैसे जो खादी प्रोडक्ट है वो इट मीन्स हमारे लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है. तो जो प्रोड्यूसर्स खादी प्रोडक्शन करेंगे उनको गवर्नमेंट इकोनॉमिकल असिस्टेंस देता है. सब्सिडीज मीन्स इकोनॉमिकल असिस्टेंस. ओके, टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर फेवरेबल फॉर द सोसाइटी. तो एक साइड में जो गुड्स इंजूरियस है, जो goods basically adversely affect the health of the people, on these goods government impose more taxes
so that production would be reduced and people avoid these goods. On the other side, government providing subsidies to increase the production of khadi type of products. Basically, it means one example I have given, khadi. Similarly, those goods are favorable for the society. Those goods are useful for the society. To stimulate of this type of production, government providing subsidies to the producers. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट में ऐसा कुछ कुछ एक्टिविटीज है जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं. In certain initiatives, actually, private sector does not want to invest money. Basically, some examples I have given you. See, private sector does not take initiative in certain activities. Basically, water supply, sanitation, etc. The private sector actually they are hesitate or they are reluctant to invest money because they are not getting profit actually due to this. So basically, in those activities, private sector, it means they do not want to involve. These sectors actually controlled by the government. Clear example I have given, like water supply and sanitation, etc. Other case may or certain activities are there. The private sectors actually they do not want to invest funds because huge amount of funds required, or in some cases also they might be facing huge losses. For this reason, the private sector, basically private entrepreneurs, they do not want to invest funds. Okay, certain activities, basically private sectors actually basically they avoid certain activities. They do not want to invest funds because it means more investment is required, or also more risk is there, or also they may be facing heavy losses. Basically, I have given some example. You see, government takes certain activities like railway, power, etc., which cannot give more profit to the private sector, and private sector is not dare to invest huge amount of funds to produce these type of services, and in sometimes ready to face losses. तो ये जो एक्टिविटीज में दिया, रेलवेज है, पावर है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट डेयर टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली ऑन दीज एक्टिविटीज. And also they expect that private entrepreneurs, they expect that they might be facing huge losses, so they do not dare to invest funds in these type of activities. So basically these activities controlled by the government. Clear? It is related to the allocation of resources. Okay, allocation of resources, it is the second objective of the government budget, the budgetary policy of the government. Third one, very important one, economic stability. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? जब कंटिन्यूअसली प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगा. वी नो दैट व्हेन कंटिन्यूअसली प्राइस लेवल इंक्रीजेस, देन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन प्रिवेल इन द इकोनॉमी, एंड एट द इन्फ्लेशन टाइम weaker sections are severely affected. Producers and investors getting more benefit because continuously price level increases, they are getting more benefit, but poor, miserable, pauper, okay, sections or debilited sections actually it means they are suffering in a lot. And in similarly in case of deflation, when continuously price level decreases, then producers and investors facing losses. Okay, so in deflation time, when continuously price level decreases, then they reduce production, level of output decreases, unemployment is rising, again income level decreases, again consumption decreases, again aggregate demand decreases, again producers reduce the production. So just it is moving like a vicious cycle. Okay, it is not favorable for the economy. एक मंदी स्थिति होता है, जैसे डिफ्लेशनरी टाइप ऑफ सिचुएशन होता है. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में मेन क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए. ना प्राइस बढ़ेगा, ना प्राइस कम होगा. तो बेसिकली इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन. इट इज द मेन प्रायोरिटी ऑफ द बजेटरी पॉलिसी. सो सेम थिंग, इट इज इट मीन्स ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. Okay, trade cycles or business cycles bound to generate in the economy. Trade cycles phases are there: recession, depression, recovery, and boom. Recession, slightly price level decreases. When slightly price level decreases, for what reason price level decreases? Na aggregate demand decreases, price level decreases, producers reduce the production, unemployment is rising. Then recession move to depression. Depression means pura mandi ka sthiti. Continuously price level is very low one. Where instead of very low price also the demand is very low. Price continuously decreases, but people they do not want to purchase the goods and services. They do not make demand on goods and services. So
this situation is adversely affect the economy because massive unemployment is arising, and many industries, actually many producers, they shut down production, they lock up their industries. Massive unemployment is arising. GDP, it means decreases in a lot of extent, and it is not basically favorable for the economy, and basically it drive the economy into a slowdown phase. Okay, so similarly recovery, there is recovery phase में slowly gradually price level increases. When price level increases, automatically aggregate demand increases and price level increases. Then producers and investors, they put more money to produce more goods and services. Then employment opportunity generated. It is recovery phase. Then boom. Boom means in this phase actually price level is high one. In case of boom phase, last phase you see boom, price level is high one. Okay, price level is high one, and due to high price level, in some cases also basically demand, aggregate demand decreases like this. So all are the trade cycle phases. Okay, recession, depression, recovery, and boom in the economy. Boom means actually it is favorable for the basically for producers because due to more aggregate demand, price level continuously increases. Investors and producers getting more profit, but when price level increases, then it is unfavorable for the weaker sections of the society. So these phases are trade cycles or business cycles. So government main the objective of the government is to control the trade cycles or business cycles. Okay, these type of phases should be prevented from the economy. Same thing I have written. The government of a country is always committed to save the economy from business cycle. So budget is used as an important policy instrument to correct the situations of deflation and inflation. So basically it means budget का जो main objective है वो inflationary situation और deflationary situation को कैसे control करना है. वो दोनों control होगा तो price stability होगा, ना price बढ़ेगा ना price कम होगा, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा. तो जब इन्फ्लेशन सिचुएशन होता है, जब continuously price level increases, okay, when continuously price level increases, then basically poor people, those people having low income, they are severely affected because they are unable to purchase adequate quantity of goods and services to fulfill their needs. वो adequate quantity of goods and services नहीं खरीद पाएंगे जो गरीब लोग हैं जिनका इनकम कम है. तो इसी फेज में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देगा इन्फ्लेशन टाइम में. पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगा. गवर्नमेंट रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स. जैसे पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स में बार बार बताया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रेलवे स्टेशंस, मेट्रो स्टेशंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, पावर प्रोजेक्ट्स. सो बहुत प्रकार का कार्य चल रहा है, तो वो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर थोड़ा कम कर देगा और यहाँ पर टैक्स बढ़ा देगा, रेट ऑफ टैक्स को बढ़ा देगा. एक साइड में एक्सपेंडिचर को कम कर देगा, अदर साइड में वो टैक्स को बढ़ा देगा. तो गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर and increase revenue to correct inflation. जब when the government in this case basically at the time of inflation, government hike the rate of tax, hike the rate of income tax or corporation tax, और other side में hike GST. So automatically जब hike हो जाएगा तब automatically क्या होगा ना, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो कम खर्च करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा. तो डिमांड कम होगा तो प्राइस धीरे धीरे कम होगा और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा. तो एक साइड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेगा, तो लोगों के हाथ में कम पैसा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब खर्च करता है तो लोगों के हाथ में पैसा जाता है. ओके, व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर देन डेफिनेटली मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस. व्हेन मनी सप्लाई डिक्रीजेस देन एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस एंड ऑल्सो प्राइस डिक्रीजेस एंड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कंट्रोल. अदर साइड में गवर्नमेंट हाइक द रेट ऑफ टैक्स. व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स देन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल decreases. So when disposable income decreases, disposable income consumption and saving. So when disposable income decreases, then consumption expenditure of the people also decreases. Aggregate demand decreases, and then it leads to decrease in price, and it means inflation situation control. Similarly, in case of deflation, government increase expenditure on public welfare programs. Deflation क्या है? जब continuously price level decreases, and basically producers and investors are severely affected. Okay, they cut up the production, they reduce production, then unemployment is rising, output level decreases. तो ये स्थिति अच्छा नहीं है. तो उस समय क्या करेगा गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स. जब गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, जैसे PDS, जैसे
आपका मनरेगा, जैसे आपका पॉवर्टी एलिवेशन, न्यू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, और जो अदर वर्क है उसके ऊपर खर्च करेगा, तब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा. तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स. ड्यू टू दिस मनी सप्लाई इंक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एंड प्राइस इंक्रीजेस, देन डिफ्लेशनाइजेशन कंट्रोल. सिमिलरली अदर साइड में क्या करेगा ना, गवर्नमेंट रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स. गवर्नमेंट रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स, जो टैक्स रेट है उसको कम कर देगा, जैसे इनकम टैक्स की, कॉर्पोरेशन टैक्स की, जीएसटी का रेट को कम करेगा. कम करने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा. व्हेन द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस, disposable income of the people increases, and then they make more demand on goods and services. So due to this, price level increases and the deflationary situation controlled. So last point is very important one. Economic stability increases the rate of growth and development. Basically, economic stability means price stability. Okay, when price is stable one, then definitely it is very useful and fruitful for the growth and development of the economy. Clear? Then next objective, managing public enterprises. We know that public sector undertakings owned, controlled, managed and financed by the government. Clear? So public sector enterprises basically producing goods and selling these goods in the market at reasonable price. So basically main objective of the it means public sector enterprises is welfare, producing some quality goods and selling to the people at reasonable price, at cheaper price, so that people getting more benefits, and these undertakings controlled by the government. So special budget provision actually given by the government to maintain these public sector enterprises or public sector undertakings. So large number of public sector undertakings which are established and managed by the government for social welfare of the public. कुछ एग्जाम्पल देता हूँ. ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी. These are the public sector undertakings controlled by the government, owned, controlled, managed and financed by the government. And basically these undertakings producing goods and selling goods in the market at reasonable price, and their main aim is social welfare. So to maintain these enterprises, budget prepared by the government. Basically in budget, government declare, it means how much funds would be released in subsequent time and in forthcoming time to maintain these enterprises, so that it means people will get more quality goods in less price. Clear? So it means government providing financial help to maintain these public sector undertakings, and in budget actually government declare, it means how much money government is going to invest to maintain these public sector undertakings. Next one, economic growth. आर्थिक समृद्धि एक बजट का मेन उद्देश्य होता है. बेसिकली वी नो दैट ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. तो हमारा जो ग्रोथ है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. Basically, budgetary policy aims to mobilize sufficient resources for investment in the public sector. We know that public sector, it is owned, controlled, managed and financed by the government. So जो बजट में, बजटरी पॉलिसी में सरकार ये डिक्लेयर करता है कि से ज़्यादा इट मीन्स रिसोर्सेस इन्वेस्ट होगा पब्लिक सेक्टर में. तो जब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स इन्वेस्ट होगा, व्हेन बेसिकली इन द बजट गवर्नमेंट ट्राई टू मोबिलाइज मोर रिसोर्सेस for investment in the public sector. Due to this, more employment opportunity generated in the economy, and other side also there is increase in production level. It means more resources government invest करेगा public sector में, तो automatically क्या होगा, production बढ़ेगा, other side में employment बढ़ेगा, तो it leads to generate more income in the economy. जब production बढ़ेगा तब income ज़्यादा होगा, तो again generation of more income leads to more saving and more investment. जब ज़्यादा इनकम होगा तब ऑटोमेटिकली मोर सेविंग होगा और मोर इन्वेस्टमेंट होगा. तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट सभी समय बजट में प्रयास करता है कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा पब्लिक सेक्टर में. ड्यू टू दिस, वन साइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेटेड इन द इकोनॉमी, अदर साइड आउटपुट लेवल इंक्रीजेस. Okay, due to this income, more income level generated in the economy, and more generation of income leads to more savings and more investment. So it boosts the economy, it stimulates the economy. Okay, on a right path. Okay, it is the driving force. It means for the development of economy. Okay, so due to this, further it boosts the economy through more output level, more employment level and income level. So basically, these are the objectives of government budget: reducing inequality of income and wealth, proper allocation of resources, economic stability,
economic growth, managing public sector enterprises. These are the major objectives of government budget. Clear? So my friends, again I request to you, please subscribe my channel Asit ECOMANIA, and please comment me and like me, and definitely I will try to bring some good videos. Then I will discuss components of budget. Components, दो प्रकार का बजट है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. So revenue budget, it is estimated revenue receipts and revenue expenditure of the government during the financial year. Revenue budget में क्या है, estimated revenue receipts and revenue expenditure. Okay, it is the estimated revenue receipts and revenue expenditure of the government during the financial year. Okay, किस किस सोर्स से गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त होगा और किस किस एरिया में गवर्नमेंट इनकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें हम आगे में हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेपरेटली when I will discuss budget receipt and budget expenditure. But now just to remember, first component is revenue budget. It is estimated revenue receipts and revenue expenditure of the government during the financial year or fiscal year. Similarly, capital budget. Capital budget में क्या आएगा? Capital receipts and capital expenditure. It is the estimated capital receipts and capital expenditure of the government during the financial year. इसमें हमको पता होगा कि गवर्नमेंट इट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट को प्राप्त होगा किस किस सोर्स से, और कैपिटल एक्सपेंडिचर किस किस एरिया में गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगा उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, उसको हम आगे में देखेंगे. अभी आ जाएगा, देखिए बजट रिसिप्ट्स आ गया. बजट रिसिप्ट्स एक्चुअली बजट रिसिप्ट हमको कंप्लीट डाटा प्राप्त होगा कि किस किस सोर्स से गवर्नमेंट को एक्चुअली रेवेन्यू प्राप्त होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो चीज, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. एक साइड में गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है और उसको खर्च कर रहा है फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द पीपल. One side government, it means collect revenue from different sources. It is budget receipts. It refers to the estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year. ये जो budget receipts है, ये गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है कि इसी सोर्सेस से इतना एस्टिमेटेड रिसिप्ट होगा, इतना रिसिप्ट होगा. वो एक्चुअल नहीं है, इतना एस्टिमेटेड है. ओके, वो एक्चुअल नहीं है. गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है इतना रिसिप्ट इसी सोर्सेस से इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्राप्त होगा. In budget, government declare that from these sources, government is going to collect actually this much of receipts. Okay, from all sources during the fiscal year. तो जो बजट रिसिप्ट्स होता है, जो पूरा हम ये करेंगे क्योंकि बजट जो स्टेटमेंट है डील्स विद बजटरी रिसिप्ट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर. तो कहाँ से कौन सा सोर्सेस से बजट रिसिप्ट्स होगा उसको हम अभी डिस्कस करेंगे. तो बजट रिसिप्ट्स टू टाइप्स, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. तो रेवेन्यू रिसिप्ट, ये जो रिसिप्ट्स के बारे में बताने से पहले मैं एक मैथमेटिकल जैसा फॉर्मूला बता रहा हूँ. रिसिप्ट्स जब आएगा आपको दो चीज के ऊपर ध्यान देना है, एक लाइबिलिटी, एक एसेट. तो रिसिप्ट्स जब आएगा फर्स्ट लाइबिलिटी लेना है और सेकंड में एसेट लेना है. फर्स्ट क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, सेकंड रिडक्शन ऑफ एसेट्स. तो लाइबिलिटी मीन्स इट इज फाइनेंशियल बर्डन. लाइबिलिटी इज फाइनेंशियल बर्डन. लाइबिलिटी, सपोज वन एग्जांपल, सपोज आई बोरो 50,000 फ्रॉम द बैंक, इट इज लाइबिलिटी फॉर मी. यदि मैं 50,000 बैंक से बोरो किया, ये मेरे लिए एक बोझ है, एक फाइनेंशियल बर्डन है. आई मस्ट बी ओब्लाइज्ड टू पे बैक 50,000 विथ इंटरेस्ट टू द बैंक इन नियर फ्यूचर. तो मुझे देना पड़ेगा, मुझे ओब्लाइज होकर मुझे देना पड़ेगा, वो 50 जितना बोरो किया है मुझे देना पड़ेगा क्योंकि वो फाइनेंशियल बोझ है लाइबिलिटी. और असेट्स है जो मेरा प्रॉपर्टी है. तो यहां पर रिसिप्ट जब आएगा मैं पूरा कंप्लीटली डिस्कस करूंगा, मगर आपको रिमेंबर करना है रिसिप्ट साइड में फर्स्ट लाइबिलिटी देन एसेट. तो लाइबिलिटी में क्रिएशन लगाइए, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, और सेकंड में रिडक्शन ऑफ एसेट्स. ओके, लाइबिलिटी में वृद्धि किस, अभी हम देखेंगे. जो आपको ये मैथमेटिकल ट्रिक है. ओके, फर्स्ट लाइबिलिटी मीन्स क्रिएशन, सेकंड में एसेट मीन्स रिडक्शन. क्लियर? तो अभी रेवेन्यू रिसिप्ट जाएंगे. रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज नॉर कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट. मैं अच्छे से बता रहा हूं ना, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स अभी गवर्नमेंट प्राप्त करेगा ना, इसमें गवर्नमेंट के लिए कोई इट मीन्स फाइनेंशियल बर्डन होगा, ना गवर्नमेंट का कोई एसेट्स में कमी होगा. ये जो रिसिप्ट्स अभी रेवेन्यू, इट मीन्स क्या है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स करेगा गवर्नमेंट उसको वो रिटर्न नहीं करेगा. Okay, due to the revenue receipts, government is not obliged to pay back it in future. और गवर्नमेंट उसको रिटर्न नहीं करेगा. ये जो रिसिप्ट्स प्राप्त करेगा उसको रिटर्न नहीं करेगा. रिटर्न नहीं करेगा मीन्स लाइबिलिटी नहीं है, बर्डन नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं है. और इसमें क्या होगा ना, गवर्नमेंट का एसेट्स में कोई कमी नहीं होगा. तो इट्स नाइदर नॉर.
मैं बार बार बोला था, फर्स्ट लाइबिलिटी के पास क्रिएशन रहेगा और एसेट्स के पास रिडक्शन रहेगा रिसिप्ट्स में। तो यहाँ पर नाइदर नॉर लगाना है, इट मीन्स नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज, ना कोई फाइनेंशियल बोझ रहेगा सरकार के ऊपर, ना कोई गवर्नमेंट का एसेट्स में कमी होगा। सो नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज नॉर कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। तो अभी सोर्सेस देखेंगे। जो सोर्सेस है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, एक टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है जिसमें ना गवर्नमेंट के लिए कोई फाइनेंशियल बर्डन रहेगा, ना कोई गवर्नमेंट का एसेट्स में कमी होगा। तो अभी देखेंगे वो सोर्सेस क्या है, कहां से रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्राप्त होता है। ना टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स पेड बाय द इंडिविजुअल, बेसिकली टैक्स imposed ऑन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स imposed बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। रिमेंबर, जब सरकार लोगों की आय के ऊपर टैक्स लगाएगा उसको इनकम टैक्स बोलेंगे। ओके, जब सरकार बिजनेस एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाएगा वो कॉर्पोरेशन टैक्स है। सिमिलरली कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स क्या है, जब कोई हम ओल्ड प्रॉपर्टी को बेचेंगे, कोई ओल्ड कोई लैंड है, कोई ओल्ड बिल्डिंग है, उसको बेचेंगे, उसके ऊपर हमको टैक्स देना है, वो कैपिटल गेन टैक्स। इंटरेस्ट टैक्स, जैसे आप कोई फिक्स डिपॉजिट आपका बैंक में है, उसमें आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स, आपका ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। और डेथ ड्यूटी, जैसे आपका कोई इट मीन्स जैसे आपका ग्रैंडफादर की फादर बहुत प्रॉपर्टी उनका था, उनका डेथ हो गया, तब उस समय वो क्या है, उनका डेथ के बाद जो वो विल करके चले गए बच्चों के नाम पे, वो क्या करेंगे, एक बार एक गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो ये सब टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मीन्स आगे में मैं डिस्कस करूंगा इन सब्सिक्वेंट टाइम, आई विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्रॉपर्ली। बट नाउ जस्ट टू रिमेंबर, डायरेक्ट टैक्स इट मीन्स द टैक्स पेड बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज इम्पोज्ड। आपको याद रखना है, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वही टैक्स पेड करेगा, ये डायरेक्ट टैक्स। यहां पर शिफ्टिंग नहीं है, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वही टैक्स पेड करेगा। और ऐसे भी डायरेक्ट टैक्स हम बोल सकते हैं, टैक्स imposed by the government on income of an individual and profit of business enterprises। इंडिविजुअल का इनकम के ऊपर सरकार टैक्स लगाता है और बिजनेस एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाता है। जो हमारा इनकम के ऊपर टैक्स लगाता है वो इनकम टैक्स, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेशन टैक्स, और अदर टैक्स के बारे में बताया। इनडायरेक्ट टैक्स, बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। यू नो दैट गवर्नमेंट लेवीज टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप कोई बिल लाओ, जब आप गुड खरीदोगे, व्हेन यू परचेज द कमोडिटी एंड कलेक्ट द बिल, इन बिल एक्चुअली क्लियरली मेंशन व्हाट इज द रियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड हाउ मच टैक्स यू पे, ओके, इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। एक जब आप बिल में देखोगे, बिल में क्लियरली मेंशन होगा एक्चुअल प्राइस क्या है और कितना जीएसटी है। ओके, जैसे जीएसटी का रेट अभी 5% है, 12%, 18%, तो डिफरेंट रेट्स है। ओके, डिफरेंट गुड्स में डिफरेंट रेट से। तो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इट मीन्स टैक्स इम्पोज्ड अदर वे में बोलता हूँ, गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन सेलर बट एक्चुअली टैक्स बियर बाय द कंज्यूमर्स। सरकार टैक्स सेलर के ऊपर लगाता है मगर एक्चुअली टैक्स कौन देता है, कंज्यूमर। तो यहाँ पर टैक्स शिफ्ट होता है, मैं आगे में पूरा डिस्कस करूंगा। ओके, जस्ट नाउ रिमेंबर, तो सोर्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू में फर्स्ट आ गया टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू इट मीन्स रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट अदर देन द टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट कुछ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, जिसमें नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज नॉर कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ना कोई ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार कलेक्ट कर रहा है, ना सरकार के ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन होता है, ना सरकार को देना पड़ेगा, ना सरकार का कोई एसेट्स में कमी होता है। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू इट इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का कंपोनेंट्स क्या है। एक है टैक्स रेवेन्यू जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, और नॉन टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट अदर देन द टैक्सेस। इसमें क्या क्या आएगा, फीस आएगा, फाइन, पेनल्टी। ओके, फीस, फाइन, पेनल्टी। जैसे एक मिनिमम सर्विस सरकार देता है तो फीस लेता है, जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मिनिमम फीस चार्ज करता है सरकार। Basically, government hospitals minimum fees charged by the government. Fine when the people break up the rules and regulations. Okay, at that time, it means lawbreakers pay the fine to the government. Similarly, penalty also same way. Penalty, suppose
आप होगा कभी कभी क्या है, इट मीन्स इन केस ऑफ पेनल्टी विद इन द डेट, एक्चुअली इफ यू डू नॉट पे द बिल इन लेट डेट, इफ यू वांट टू पे द बिल, देन पेनल्टी इट मीन्स इम्पोज्ड ऑन इट. फॉरफीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन द पीपल डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट का ऑर्डर लोग नहीं मानेंगे, सपोज कोई लीगल मैटर में कोर्ट ने कोई नोटिस भेजा और उसको हम डिसोबे किया, we do not comply the order of the court, then at that time actually penalty imposed by the court. वो फॉरफीचर्स है. ओके, बेसिकली फॉरफीचर्स आगे मैं सब डिस्कस में करूंगा. आगे में मेरा सेकंड वीडियो में आप देखोगे टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू पूरा डिस्कस करूंगा. तो ये फॉरफीचर्स है. व्हेन द पीपल disobey or not comply the order of the court, then court impose the penalty on the person who disobey the order of the court. एक एस्टिट्स है. एस्टिट्स क्या है? सपोज एक आदमी का एक पर्सन उसका डेथ हो गया, मगर वो उसका प्रॉपर्टी को किसके नाम पे नहीं करके गया. जो विल होता है वो किसके नाम पे नहीं किया. तो मेरा सेंटेंस सुनो. एस्टिट्स एक्चुअली द गवर्नमेंट सीज द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और विल. उसका डेथ हो गया मगर वो उसका प्रॉपर्टी को किसके नाम पे नहीं किया, तो वो प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट सीज कर देता है, क्योंकि वो उसका डेथ होने के बाद वो प्रॉपर्टी का मालिक कोई नहीं है. तो मैं वही सेंटेंस बताया. इट मीन्स द गवर्नमेंट सीज द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और विल. सिमिलरली नॉन टैक्स रेवेन्यू में प्रॉफिट्स ऑफ पीएसयू, जो पीएसयूज में बताया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ओएनजीसी, गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है, उनका प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगा. इंटरेस्ट, बेसिकली इंटरेस्ट कहाँ से प्राप्त करता है ना? यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को लोन देता है, उनसे इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगा. एक स्पेशल असेसमेंट. स्पेशल असेसमेंट क्या है? सपोज मेरा एक प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू बहुत कम है, मगर उसके पास एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ गया. जैसे मेरा लैंड है, उसका वैल्यू कम था, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके पास में एक रेलवे स्टेशन बनाया, कोई एक मार्केट कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई एक बड़ा गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बना दिया, जिससे क्या हुआ, मेरा लैंड का वैल्यू बढ़ गया. So when it means property of the people has appreciated due to the developmental projects of the government, then at that time people pay it means some money to the government. क्योंकि सरकार जब एक प्रोजेक्ट बनाया, उससे हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया, तब हमको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा. और एक गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स. जैसे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स में गिफ्ट्स, सपोज गवर्नमेंट रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, और ग्रांट्स जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, इन कोविड पैंडेमिक बेसिकली गवर्नमेंट अप्रोच द पीपल फॉर डोनेशन, एंड ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बेसिकली दे आर 1 or 2 days salary actually deducted and donate to the government. But government assist the affected people, and government invest funds in research activities basically. So gifts and grants. So ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है. तो ये जो टू कंपोनेंट्स है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसमें क्या है, नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज नॉर रिडक्शन ऑफ एसेट्स. ना गवर्नमेंट के लिए कोई क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज, ना कोई फाइनेंशियल बर्डन सरकार के होगा. ये जो प्राप्त हो रहा है टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट प्राप्त करने के बाद उसको देना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसलिए नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, ना इसी जो रेवेन्यू प्राप्त से गवर्नमेंट का असेट्स में कोई कम हो रहा है. क्लियर? और एक सेकंड है, सेकंड रिसिप्ट जो है कैपिटल रिसिप्ट्स. मैं बार बार बताया, जो बजट रिसिप्ट्स दो प्रकार का है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक है कैपिटल रिसिप्ट्स. तो कैपिटल रिसिप्ट्स में मैं बार बार बताया, रिसिप्ट्स में फर्स्ट लाइबिलिटीज आएगा और सेकंड में असेट्स आएगा. फर्स्ट जो आएगा क्रिएशन, सेकंड में रिडक्शन. तो यहां पर आइदर और. कभी कभी हम देखेंगे जो कैपिटल रिसिप्ट्स में कभी कभी क्या होगा ना, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज, सरकार के लिए फाइनेंशियल बर्डन रहेगा, सरकार को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा. और कभी कभी सरकार का असेट्स में कमी होगा. तो यह अभी हम देखेंगे कि किस सोर्सेस से गवर्नमेंट एक्चुअली रिसीव कैपिटल रिसिप्ट्स. ओके, सो इट इज आइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज और कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ असेट्स फॉर द गवर्नमेंट. ओके, कुछ रिसिप्ट्स में लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकता है. इट मीन्स
it impose burden on the government and government must be obliged to pay it in future. और किस किस रिसिप्ट्स में, कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होगा ना, सरकार का असेट्स में कमी होगा. तो फास्ट सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? बोरोइंग्स. ओके, बोरोइंग्स कब होता है? व्हेन द बेसिकली व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू. जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होगा तब गवर्नमेंट क्या करेगा? बोरो करेगा. इट मीन्स फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोरोइंग्स. फास्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, रीजन गवर्नमेंट उसको रिसीव करता है. फास्ट बोरोइंग्स इट मीन्स गवर्नमेंट रेज फंड्स ओके फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर. जो एक्सेस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली बोरो करेगा. अच्छा, सोर्सेस क्या है? गवर्नमेंट किसके किसके फ्रॉम व्हिच सोर्सेस गवर्नमेंट बोरो मनी? कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट बोरो करता है? फर्स्ट, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम पब्लिक. जैसे पोस्ट ऑफिस में देखा किसान विकास पत्र. जैसे हम किसान विकास पत्र के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और हमको एक बॉन्ड पेपर मिलता है, मगर 8 साल के बाद वो डबल होता है. अभी हम जो इन्वेस्ट किया, सपोज मैं 10,000 अभी दिया, वो गवर्नमेंट के पास चला गया और 8 साल के बाद वो गवर्नमेंट मुझे कितना देगा? 20,000 देगा. मेरा 10,000 प्लस इंटरेस्ट 10,000. ओके, और एक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. अभी मैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 10,000 इन्वेस्ट किया, तो 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स गवर्नमेंट विल पे टू मी, बेसिकली पोस्ट ऑफिस पे टू मी 15,000. मैंने जितना आप इन्वेस्ट किया उसका 50% इंटरेस्ट 5 साल के बाद मिलेगा. तो अभी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज वन टाइप ऑफ बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक. जैसे पेंशन फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, तो हमारा रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन देगा, मगर अभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास चला गया ना. तो ये सब है बोरो फ्रॉम पब्लिक. बोरो फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स and government borrow from foreign financial institutions like International Monetary Fund and World Bank. Clear? So जो main capital resources borrowings है, it means funds raised by the government from different sources to meet the excess expenditure. मैं आपको different sources से बताया कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट बोरो कर रहा है. ओके, तो बोरोइंग जो है गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो करेगा मीन्स उसको देना पड़ेगा. गवर्नमेंट मस्ट बी ओब्लाइज्ड टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट इन सब्सिक्वेंट टाइम. फ्यूचर में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. गवर्नमेंट कमिटमेंट करेगा, जिस जिस सोर्स से बोरो करेगा गवर्नमेंट उनको कमिटमेंट करेगा कि ये स्टिपुलेटेड डेट के अंदर क्या करेगा, मैं उसको पेमेंट करूंगा, गवर्नमेंट उसको पेमेंट करेगा. तो बोरोइंग इट इज द कैपिटल रिसिप्ट. इट्स में क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज. सपोज क्वेश्चन आ रहा है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स. सपोज बोरोइंग्स, it means borrowings by the government, it is a capital receipt because it is creation of liabilities. मैं बार बार बताया जो capital receipts है, creation of liabilities, either creation of liabilities और reduction of assets. कभी कभी क्या है, liabilities create होगा, सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा, और किसमें, सरकार का assets में कमी होगा. तो आपको देखना है किस किस रिसिप्ट्स में क्या हो रहा है. तो बोरोइंग्स में क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज. तो क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज मीन्स कैपिटल रिसिप्ट. तो फिर आएगा रिकवरीज ऑफ लोन्स. रिकवरीज ऑफ लोन्स क्या है? मैं बार बार बताया था, गवर्नमेंट लोन किसको देता है? स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. गवर्नमेंट लेंडिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अगेंस्ट सिक्योरिटीज. जैसे हम बैंक से अभी बोरो करेंगे, हमको क्या रखना पड़ेगा? सिक्योरिटी रखना पड़ेगा. सिक्योरिटी मीन्स कोलाटरल असेट्स, जैसे हमारा बिल्डिंग, गोल्ड, बैंक बैलेंस हमको रिकॉर्ड में दिखाना पड़ेगा. टर्म्स एंड कंडीशंस पेपर में क्लियरली मेंशन होगा. ये जब इट मीन्स हम इसी सिक्योरिटी के आधार पर हम बोरो किया. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली रिकवरीज ऑफ लोन्स वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि जो लोन दिया था स्टेट गवर्नमेंट से यूनियन टेरिटरीज को, वो लोन को रिकवरी कर लिया सरकार. जब रिकवरी कर लिया, गवर्नमेंट के पास वो जो सिक्योरिटी रखे थे गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी दे दिया. तो मैं बार बार बोला था लेंडिंग, जब हम लेंडिंग कर रहे हैं तब वो है क्रिएशन ऑफ एसेट्स, क्योंकि हम जब लेंडिंग करेंगे तब हम सिक्योरिटीज एक्सेप्ट करेंगे. जैसे आप देखा होगा जो मनी लेंडर से, जब मनी लेंडर से लेंड करता है तब वो क्या रखता है? कुछ गिरवी, वो मॉर्टगेज कुछ रखता है, जैसे गोल्ड, कुछ लैंड, वो मॉर्टगेज के आकार में रखता है. तो जब वो एक कंडीशन करता है कि जब वो आप मेरा पैसा रिटर्न कर दोगे, मैं फिर आपका गोल्ड और लैंड को रिटर्न कर दूंगा. तो वही है रिकवरीज ऑफ लोन्स. इट मीन्स लेंडिंग टू अदर्स इज एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. बेसिकली हम जब व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट लेंडिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, देन दे कीप एसेट्स. ओके, दे कीप एसेट्स विद द गवर्नमेंट. वो एसेट्स सरकार को देंगे और लोन लेंगे.
मगर जब रिकवरीज हो गया वो यूनियन गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिए, तब यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगा, उनका असेट्स को रिटर्न कर देगा। तो असेट्स उनको रिटर्न कर दिया मीन्स रिडक्शन ऑफ असेट्स, रिकवरीज ऑफ लोन्स मीन्स रिडक्शन ऑफ असेट्स। तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। ओके, जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज को जो लोन दिया था, अभी वो जब लोन को चुका दिए, वो जब यूनियन गवर्नमेंट रिकवरी द loan amounts from the state governments and union territories, then union government return back their securities. So return back their securities means it is reduction of assets of the government. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया रिकवरीज ऑफ लोन्स ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट। रीजन इज इट इज रिडक्शन ऑफ असेट्स। मैं बार बार आइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज और रिडक्शन ऑफ असेट्स। कभी कभी क्या होगा, कुछ रिसिप्ट में लाइबिलिटीज क्रिएट होगा, गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा, द गवर्नमेंट मस्ट बी ओब्लाइज्ड टू पे बैक इट इन फ्यूचर। एंड कभी कभी असेट्स कम होगा। यहाँ पर जब लोन दिया था वो सिक्योरिटी रखे थे मीन्स वो क्रिएशन ऑफ असेट्स, मगर अभी जब वो लोन को स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यूनियन गवर्नमेंट को दे दिए, यूनियन गवर्नमेंट उनका असेट्स को रिटर्न कर दिया, तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए असेट्स कम हो गया। तो ये है रिडक्शन ऑफ असेट्स। ओके, इट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट। थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, डिसइन्वेस्टमेंट। आप सुना होगा, जो विनिवेश कहा जाता है हिंदी में। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स कुछ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं जिनका लॉस होता है कंटिन्यूअसली, दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फेसिंग लॉसेस, कि गवर्नमेंट एक्चुअली डिटेक्ट दैट फ्रॉम दोज टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक्चुअली गवर्नमेंट गेटिंग मिनिमम प्रॉफिट, गवर्नमेंट को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, उनका पार्ट की होल ऑफ द शेयर्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेच देता है। ओके, तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। जैसे इट मीन्स ओनरशिप फ्रॉम, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो कब ये होता है ना, जब गवर्नमेंट ये सोचता है कि इतना पैसा गवर्नमेंट सोचता है कि इन्वेस्ट हो रहा है मगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कि लॉस हो रहा है, तब गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि अभी शेयर्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेचा जाएगा। पार्ट है कि होल है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। जैसे अभी भारत एल्यूमिनियम कंपनी है, अभी ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, उसमें अभी गवर्नमेंट इट मीन्स कुछ पार्ट को सेल कर दिया प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। जैसे बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर 51% है और 49% गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेच दिया, वो जॉइंट सेक्टर हो गया। तो इसमें डिसइन्वेस्टमेंट वही है, इट रिफर्स टू द पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर। सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं, सिलेक्टेड मीन्स कैसे सरकार सिलेक्ट करेगा ना, दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स since 5 to 6 years, it means they have been facing losses or the government getting minimum profit from these enterprises. Then ultimately government decide that it means to sell part or whole of the shares to private entrepreneurs. So disinvestment refers to the part or whole of the shares of selected public sector undertakings, okay, sales by the government to the private sector. Okay, so private sector को बेच देता है. तो due to this there is transfer of ownership from PSEs to private entrepreneurs. अभी ओनरशिप ट्रांसफर हो गया क्योंकि पहले क्या था 100% शेयर सरकार के पास था. अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट उसका कुछ पार्ट दे दिया तो जो जॉइंट सेक्टर हो गया. जैसे मैं बाल्को बताया 51% गवर्नमेंट का है, 49% प्राइवेट सेक्टर का है, तो वो जॉइंट सेक्टर हो गया. वो 100% शेयर अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है, वैसे पूरा होल दे दिया तो वो प्राइवेट सेक्टर का पूरा ओनर हो गया. प्राइवेट सेक्टर कि अभी जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को, उसको पूरा प्राइवेट गवर्नमेंट सोच रहा है ऑक्शन कर देगा 100% शेयर. गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज डिसाइडेड टू सेल ऑफ 100% शेयर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. अभी क्लियर. तो वो जो सरकार को जो पैसा प्राप्त होगा, जो शेयर को बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त होगा, गवर्नमेंट क्या करेगा ना, उसको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में यूज करेगा. हाउ मच फंड इज रेज्ड ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट, देन गवर्नमेंट यूटिलाइज इट ऑन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. समझ में आया? तो ये जो इसमें क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट में रिडक्शन ऑफ एसेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट अभी शेयर्स को बेच दिया प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, तो वो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को. तो इट मीन्स रिडक्शन ऑफ एसेट्स. गवर्नमेंट शेयर्स को बेच दिया तो एसेट्स रिड्यूस हो गया गवर्नमेंट के लिए. ओके, तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑल्सो इट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज रिडक्शन ऑफ एसेट्स. सिंपली रीजन. सपोज क्वेश्चन आएगा वेदर डिसइन्वेस्टमेंट इज ए कैपिटल रिसिप्ट और नॉट. यस, it is a capital receipt because due to disinvestment there is reduction of assets of the government. Government sell part or whole of the shares to the private entrepreneurs. Government lose the assets, so it is reduction of assets. मैं बार बार बताया जो कैपिटल रिसिप्ट से
एक साइड में कभी कभी क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज हो सकता है और रिडक्शन ऑफ एसेट्स हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या है? रिडक्शन ऑफ एसेट्स। Clear? Then same thing I have written. You see, highlight sentence. Money received through disinvestment is treated as capital receipt because it causes reduction in assets of the government. Then last one, small savings. Small savings में बताया, जैसे पोस्ट ऑफिस में हम किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट हमको पेमेंट कर रहा है विथ इंटरेस्ट। तो अभी जो हम ये जो केवीपी और एनएससी के ऊपर हम इन्वेस्ट किया वो सरकार के पास चला गया, तो पोस्ट ऑफिस हमको बॉन्ड दिया। तो बॉन्ड देने के बाद क्या है, जैसे केवीपी जो कि किसान विकास पत्र 8 ईयर्स के बाद डबल होता है। हम अभी 10,000 इन्वेस्ट कर दिया केवीपी के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 8 ईयर्स पोस्ट ऑफिस हमको कितना पेमेंट करेगा? 20,000 डबल। 10,000 हम जो इन्वेस्ट किया प्लस इंटरेस्ट ऑल्सो सेम 10,000, मगर आफ्टर 8 ईयर्स। सिमिलरली एनएससी में बताया, अभी 10,000 आप इन्वेस्ट करोगे तो 5 ईयर्स के बाद आपको 15,000 मिलेगा, माने 10,000 का 50% इंटरेस्ट मिलेगा। और अभी तो सरकार के पास चला गया ना। ओके, स्मॉल सेविंग्स ऑल्सो इट इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज ड्यू टू दिस इट इज क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अभी हमारा पैसा गवर्नमेंट ले लिया, मगर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू पे बैक इन फ्यूचर विथ इंटरेस्ट, तो इट इज लाइबिलिटी, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। इट इज क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा हम जो अभी स्मॉल सेविंग्स कर रहे हैं। ओके, तो ये सब है कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आपको देखना है कहाँ पर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी होता है और कभी कभी क्या होता है ना, रिडक्शन ऑफ एसेट्स होता है। इसलिए डेफिनेशन क्या है? आइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी और कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का डेफिनेशन क्लियरली है, इट रिफर्स टू नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी नॉर कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स। और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। जो रेवेन्यू रिसिप्ट, जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये रेगुलर है, रेगुलर और रिकरिंग, बार बार इसको सरकार कलेक्ट कर रहा है, और रेगुलर है, एवरी ईयर गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है। जो फीस, फाइन, पेनल्टी रेगुलर ले रहा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट इज रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, बढ़िया पॉइंट है, देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार कलेक्ट कर रहा है उसको वो रिटर्न नहीं करेगा। जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार ले रहा है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, और ये जो फीस, फाइन, पेनल्टी फॉर फीचर्स, एस्टेट, स्पेशल असेसमेंट, ये जो सरकार हमसे ले रहा है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसको गवर्नमेंट रिटर्न नहीं करेगा। इसीलिए तो इट इज नाइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज नॉर रिडक्शन ऑफ एसेट्स, एग्जांपल में दे दिया। और सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट्स डेफिनेशन, इट इज आइदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी और कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स है, जैसे बोरोइंग्स है, रिकवरीज ऑफ लोन्स है, डिसइन्वेस्टमेंट है, स्मॉल सेविंग्स है, रेगुलर एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर। ओके, कैपिटल रिसिप्ट्स, दीज रिसिप्ट्स आर इरेगुलर, रेगुलर नहीं है, दीज रिसिप्ट्स आर इरेगुलर। सभी समय क्या सरकार बोरो करता है? क्या सभी समय रिकवरीज ऑफ लोन होता है? क्या सभी समय गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, सिलेक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शेयर को बेचेगा? वो इरेगुलर है। दीज रिसिप्ट्स आर इरेगुलर एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो रेगुलर है, रिकरिंग इन नेचर है। ओके, यहाँ पर इरेगुलर एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर। इन केस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, जो बोरोइंग होता है कैपिटल रिसिप्ट्स में, जो बोरोइंग्स केस में क्या होगा, गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्लाइज्ड टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। इन केस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट लाइक बोरोइंग्स, देयर इज फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट इन फ्यूचर। सरकार को देना पड़ेगा, बिकॉज जो बोरोइंग्स होता है वो कैपिटल रिसिप्ट क्यों होता है? इट इज क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, इट इज क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्लाइज्ड, गवर्नमेंट मस्ट बी कमिटेड टू पे बैक इन फ्यूचर विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे देना है ये डिफरेंस में। और कुछ क्वेश्चंस दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ आर कैपिटल रिसिप्ट्स डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू रिसिप्ट्स? डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ द गवर्नमेंट बजट इन इन्फ्लुएंसिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। सब डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट कैन यूज द बजटरी पॉलिसी इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस किया। एक्सप्लेन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सब डिस्कस किया आज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, डिस्कस किया अभी इन गवर्नमेंट बजट गिव देयर कंपोनेंट्स। तो ये था डिस्कशन। फिर नेक्स्ट में मैं बजटरी एक्सपेंडिचर के ऊपर जाऊंगा, और इट मीन्स टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में पूरा डिस्कस करूंगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। सो जस्ट यू सी माय सेकंड पार्ट, जस्ट आफ्टर 1 or 2 days I will bring my second part regarding to the government budget and the economy, and in second part I will discuss tax revenue, sources of tax revenue, sources of non-tax revenue, then budget expenditure like revenue expenditure and capital expenditure. So just wait and watch. So my friends, I think that my explanation definitely it is interesting for you. So watch the video till the end, and please subscribe me, like me,
and comment me. So thank you. Then just you wait for my second video in regarding to the government budget. Thank you.